Very good afternoon, students. We continue the differences between replication and transcription. In last video we discussed about the transcription, that how it is occurs and in different cell, means in prokaryotes and eukaryotes. आज हमने replication भी पढ़ लिया और हमने transcription भी पढ़ लिया. अभी हम इनके बीच में क्या differences हैं वो देखते हैं. So replication and transcription. Replication है, आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ा भी है कि replication is the formation of DNA. कहाँ से? From the DNA strand. तो it is the synthesis of DNA from DNA. In contrast to here, in case of transcription, there is synthesis of RNA. Transcription क्या था? Synthesis of RNA from DNA strand. Next, both strands of DNA takes part in replication. आपको याद हो तो हमारे replication में DNA के दोनों strands आपस में, जो हमारा हेलिक्स है वो हेलिक्स खुल गया था और दोनों strands पे एक नया DNA दोनों strands पे बने थे, दो DNA थे. तो यहाँ पे दोनों ही strands participate करते हैं in case of replication. But in case of transcription, there is only single strand functions as a template strand. और वो strand हमारा जो template strand का काम कर रहा था, that was 3' to 5'. यहाँ पे हमारे दोनों replication में हमारे दोनों strand काम आते हैं, दोनों strand DNA की synthesis करते हैं. But हमारे transcription में सिर्फ एक ही DNA का strand template strand की तरह काम करता है, and that was 3' to 5'. Next, it produces double stranded replica of DNA. आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा replication था, उसमें हमने पढ़ा था तो एक strand separate हो गया था, वहाँ से double helical structure जो था हमारा helical structure, double stranded structure वो तैयार हुआ था. तो यहाँ हमारा double stranded replica DNA की तैयार हुई है. But in case of transcription, it produces only single stranded of RNA. Next, आप हमारे replication में एक छोटे से primer को हमने ऐड किया था and जिसने आगे जाके polymerization में help किया था. तो initiation के लिए हम यहाँ RNA primer का use करते हैं. In case of replication, there is very essential for initiation step that there is requirement of RNA primer. But in case of transcription, there is no any requirement of primer. Next, हमारे replication में हमारे deoxy 4 टाइप के deoxy ribonucleosides triphosphate, that these are DATP, deoxy ATP, DGTP, DCTP and DTTP. There are these 4 raw materials are with DATP, DGTP, DCTP and DTTP. These were used as raw materials. But in case of transcription, there are also 4 types of ribonucleoside triphosphate. These were deoxyribonucleoside triphosphate, and these are ribonucleosides triphosphate and act as raw materials for this reaction, for this process, and these are ATP, CTP, GTP and UTP. Because यही तो हमारा मेजर डिफरेंस है हमारे DNA और RNA के बीच में कि यहाँ thiamine के बजाय instead of thiamine there is use of uracil. Next है हमारा that this reaction replication, yeah, you can say this phenomena, yeah, this process is mediated by DNA polymerase enzyme. DNA polymerase enzyme. DNA polymerase third in prokaryotes and DNA polymerase epsilon
delta, which help in this activity, that are in eukaryotes. Delta and epsilon DNA polymerase third in prokaryotes, and DNA polymerase epsilon and delta in eukaryotes. But there is this reaction is mediated by RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme. And you know very well, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से ये बताया है कि RNA polymerase प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA polymerase होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के केस में 3 RNA polymerases होते हैं जो अलग अलग RNA की सिंथेसिस या ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, ये जो रेप्लिकेशन है, this replication, this occur in S phase of cell cycle, S phase of cell cycle, and transcription, this transcription takes place in G1 and G2 phase of cell cycle. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस बन सकते हैं. तो आप ये सब डिफरेंसेस आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कंपैरिजन तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो. आगे चलते हैं. हमारे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हमने फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कर लिया है. नाउ आरएनए हमारा किस टाइप का होता है, एक डिफरेंस और भी बता सकते हैं. This replication occur in takes place in nucleoplast, and transcription, this transcription है हमारा, ये भी न्यूक्लियोप्लास्ट में होता है. तो ये तो हमारा डिफरेंस नहीं हुआ. This is a similarity that replication occur in nucleoplasm and transcription this also occur in nucleoplasm. DNA का replication, we completed this step. replication के बाद transcription, and through this transcription formation of RNA take place, and then after polypeptide chain, protein. अभी हम यहाँ हमने पढ़ा है कि हमारे डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस हुई है ना. तो आरएनए क्या है, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एंड आरएनए आगे जाके आरएनए बहुत सारे हमारे टाइप्स के आरएनए होते हैं. तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए, types of RNA. There are many types of RNA present, but three major types of RNA are mRNA, which is known as messenger RNA. Second is tRNA, this is transfer RNA, and rRNA means ribosomal RNA. These are components of ribosomes. Messenger RNA. This is messenger RNA, tRNA, this is
transfer RNA, and third is ribosomal RNA. मैसेंजर आरएनए, इसे मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कन्वे द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। ये ही ऐसे हैं जो ये वो आरएनए हैं जो इंफॉर्मेशन को डीएनए से और नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं सॉरी कन्वे करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज अ मैसेंजर आरएनए। सेकंड, इसे जेनेटिक आरएनए भी बोला जाता है। सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए, दिस इज टीआरएनए। इसे ट्रांसफर आरएनए क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब प्रोटीन सिंथेसाइज करती है तो हमारे ट्रांसफर आरएनए हैं, दे ब्रिंग अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को लेके आते हैं एंड उसको लाके हमारे राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए से बनी हुई स्ट्रक्चर पे साइट को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे उसे बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड करते हैं उसे। राइबोसोमल आरएनए, these are the ribosomal RNA, these are the components या units of ribosomes and it play very important, it provided the platform for the protein synthesis। हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस में तीनों ही टाइप के आरएनए हैं, वो अपना अपना रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए के बारे में देखते हैं। मैसेंजर आरएनए इट कन्वे, अभी मैंने बताया कि इट कन्वे मैसेज फ्रॉम डीएनए टू नेक्स्ट जनरेशन या फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एंड यहाँ पे हमारे टोटल एमआरएनए का कितना परसेंट पार्ट होता है? दैट इज 2 to 3% ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट अमॉन्ग द कंप्लीट जितने भी हमारे आरएनए हैं उसमें मैसेंजर आरएनए का सिर्फ 2 से 3% तक का हिस्सा होता है। एंड दिस कन्वे मैसेज फ्रॉम डीएनए, और कैसे मैसेज को कैसे कन्वे करता है? यहाँ पे 3 consecutive amino acids होते हैं and these consecutive amino acid forms genetic code, these form, these genetic code is present on messenger RNA and messenger RNA है वो एक long हमारा लंबा सा डीएनए की डबल स्टैंडर्ड से डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ हमारा एमआरएनए की फॉर्मेशन हुई है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम जेनेटिक आरएनए भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए भी हमारे मैसेंजर आरएनए को कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशनल It is also known as informational mRNA। और इंफॉर्मेशन ये किसके रूप में किसके रूप में इसके पास इंफॉर्मेशन होती है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दीज जेनेटिक कोड, 3 अमीनो बेसिस, 3 अमीनो या फिर नाइट्रोजनस बेसिस, कंसेक्यूटिव नाइट्रोजनस बेसिस, कलेक्टिवली नोन एज द जेनेटिक कोड। यहाँ जेनेटिक कोड हमारे मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। This mRNA strand consisting this region and this region is known as cap। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, तो उस दौरान ऐसा स्ट्रक्चर बना था। तो दिस इज नोन एज कैप एंड दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज पॉली ए टेल
This is the coding region. ये हमारा coding region है. And this cap and this is tail. This is coding region. This is non-coding region. Non-coding region और वो non-coding region जो हमारी कैप के जस्ट साथ है उसे हम क्या कहते हैं? We call that as leading region. And this is the trailer region. Trailer region, and this is also non-coding. Non-coding region. Here, this is the structure of mRNA. mRNA strand. It having the parts of mRNA strand. It having 5 prime cap. It having cap towards the 5 prime end and towards the 3 prime end. It's having tail region. यहाँ पे ये हमारी कैप है और कैप जो है ये किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ, इसे हम मिथाइल जी कैप बोलते हैं इन यूकैरियोट्स. मिथाइल या मिथाइलेटेड जी कैप, मिथाइलेटेड 7 मिथाइलेटेड जी कैप भी बोल सकते हो आप इसे. ये कैप, जैसे कैप का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, वैसे ही यहाँ पे हमारी mRNA स्ट्रैंड का ये हिस्सा विच एक्ट एज कैप, ये हिस्सा हमारे mRNA के स्ट्रैंड को एंजाइम्स से डिग्रेड होने के लिए प्रिवेंट करता है. इट प्रिवेंट mRNA स्ट्रैंड, इट प्रिवेंट mRNA स्ट्रैंड कहाँ से? From degradation from many nucleases. बहुत सारे न्यूक्लियसेस आ जाएं और इसे डिग्रेड करते हैं, इसीलिए हमारी ये जो है हमारी जी कैप, मिथाइलेटेड जी कैप, ये हमारे mRNA स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, ये यहाँ डिग्रेडेशन नहीं होने देती. दिस स्ट्रैंड इज द लीडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है. एंड दिस इज नोन एज अनट्रांसलेटेड रीजन. Untranslated region, yeah, you can say UTR. This is UTR, untranslated region, and this trailer region is also UTR. There is also no further reaction take place. That's why this is non-coding region. Non-coding region. ओके, नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, बीच वाला है ये कोडिंग रीजन है. यहाँ पे इनिशिएशन भी होता है और यहाँ पे टर्मिनेशन भी हो जाता है. इनिशिएशन जहाँ से शुरू होगा उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज इनिशिएशन कोडॉन. जहाँ पे भी 3 हमारे कंसेक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस मिलके इनिशिएट करते हैं हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज इनिशिएशन कोडॉन. तो mRNA strand having initiation codon and mRNA strand towards the 3 prime and mRNA strands having known means जहाँ पे टर्मिनेशन हो जाती है, जहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन रुक जाता है, दैट इज द टर्मिनेशन रीजन. तो वहाँ पे हमारा टर्मिनेशन रीजन होते हैं. तो हमारा इनिशिएशन कोडॉन एज वेल एज हमारा स्टॉप कोडॉन, बीच में रिएक्शन होती है, वहाँ पे हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता रहता है. दिस रीजन यहाँ पे सेम एज कैप रीजन के जस्ट बाद का जो रीजन था नॉन कोडिंग रीजन, जिसे हमने लीडिंग रीजन बोला था, लेकिन यहाँ ट्रेलर रीजन है. दिस ट्रेलर रीजन इज ऑल्सो नॉन कोडिंग रीजन. यहाँ पे भी किसी टाइप की किसी भी टाइप का कोई भी किसी भी चीज़ की सिंथेसिस नहीं होती है. हियर
पॉली ए टेल, एंड यहाँ पे बहुत सारे एडिनाइलेटेड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 एडिनाइलेटेड रेजिड्यू प्रेजेंट होने की वजह से हम इस हिस्से को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस इज द पॉली ए टेल. And what it functions, its function is also prevention of mRNA strand from many degradation by many enzymes. So for example degradation by exonuclease enzyme. ये poly A tail, हमारी poly A tail हमारे mRNA के strand को exonuclease से it prevent या protect, it protects mRNA strand by exonuclease activity या exonuclease degradation. एक्सोन्यूक्लियेज के डिग्रेडेशन से हमारी पॉली ए टेल में हमारे mRNA स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करती है, और हमारी कैप जो है which is known as methylated G cap MGPP. This is M small m G P P P, and this is MGPP. This is methylated cap, methylated G cap. This protect the mRNA strand from the degradation of many nucleases enzymes. Here, this is the coding region, and यहाँ coding region पे ये जो sequence है, this sequence is known as initiation codon. Initiation codon, and this initiation codon is AUG. It having nitrogenous bases, 3 consecutive nitrogenous bases, and that is AUG. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारा इनिशिएशन कोडॉन AUG, जितने भी AUG हैं, कहीं पे भी हमारा ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है क्या? नहीं. AUG से पहले इन केस ऑफ mRNA स्ट्रैंड या ओन mRNA स्ट्रैंड, AUG से पहले देयर आर सम important nitrogenous base sequence present, and वो nitrogenous base sequence है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं जिनके बाद हमारा इनिशिएशन कोडॉन होता है और वहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है. तो जैसे मान लीजिए दिस इज इन केस ऑफ AUG, तो दिस इज इनिशिएशन कोडॉन AUG मेथियोनाइन दैट इज, एंड यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में एक सीक्वेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज Shine-Dalgarno. Shine-Dalgarno sequence. In case of prokaryotes, there is AUG. वो AUG is act as initiation codon, जिसके पहले Shine-Dalgarno sequence होता है, और यूकैरियोट्स के केस में एक सीक्वेंस होता है जिसे कोजाक सीक्वेंस बोला जाता है. एंड AUG सीक्वेंस एंड कोजाक सीक्वेंसेस हैं, ये हमारे प्यूरिन रिच होते हैं. दीज आर प्यूरिन रिच. प्यूरिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं जहां से हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है. In case of prokaryotes, initiation codon is AUG and AUG methionine, और इससे पहले जो हमारा Shine-Dalgarno सीक्वेंस होता है वो होता है AGG and U. This is the Shine-Dalgarno sequence. इस सीक्वेंस के बाद जो हमारा methionine होता है, that methionine is responsible for initiation codon. जैसे जैसे रिएक्शन होती रहती है, इलोंगेशन होता रहता है, इलोंगेशन बहुत सारे इलोंगेशन फैक्टर हेल्प करते हैं इसमें, एंड एट द लास्ट देयर
is the termination codon present, which terminate the steps, which terminate the process, and that termination codon there are three types of codon are stop codon, UAA, and this UAA is known as occur, second stop codon is UAG, this is umber, third stop codon is UGA, this is opal. Ochre, umber and opal, that is UAA, UAG and UGA, all these are stop codons. Stop codon. तो हमारा AUG है methionine that act as the initiation codon which are present on the coding region of mRNA strand, and it initiate the translation process. But at the terminator end, there are these three stop codons which stop the reaction, which stop the translation process, and these are UAA, that is ochre, UAG, amber, and UGA, that is opal. So that this is the structure of mRNA strand. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.